Good morning to all the students of class 6. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karunesh Misra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today I am going to teach you the first chapter of civics, that is diversity. So let's start with an introductions. Dear students, what is diversity? Let you know. The state of being different from one another is called diversity. Diversity can be in all fields of life. In your class, you will find children who speak different languages, celebrates different festivals, like to play different games and study different subjects. When you go to a shop to buy a pen, you will find different varieties of it. You can choose the one that suits your requirements. Diversity is present day, or diversity is present in every field of life. It adds variety and makes our life more interesting. Dear students, let's know about the diversity in India. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। भारत वो देश है जो भिन्नताओं और विषमताओं से जो है भरा हुआ है। डाइवर्सिटी हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडिया। पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजन्स एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन इंडिया and different languages live in India. However, in spite of this diversity, a basic unity binds us together. This lines us our identity as Indians. तो भारत वो देश है जिसमें बहुत तरह के धर्म के, बहुत तरह की भाषा बोलने वाले लोग, वेशभूषा आदि के जो है लोग रहते हैं। तो भारत जो है विषमताओं से, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषमताओं से जो है भरा हुआ जो है राष्ट्र है। लेकिन इतनी सारी जो है विषमताओं होने के बावजूद भी भारत में राष्ट्रवादी जो भावना है वो बलवती है, जो कि हमें एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। हम सब पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई। However, in spite of this diversity, a basic unity binds us together. This lends us our identity as Indians. People of India are Indian first. All other identities come later. Underlying the spirit of unity in diversity determines our identity as Indians. It is also an integral part of our heritage. The history of diversity. Dear students, in the past, India was a very rich country. जब हम अतीत को देखें तो इंडिया वाज पास्ट में जाए तो इंडिया वाज अ वेरी रिच कंट्री. इट इज नोन एज द गोल्डन बॉर्ड. भारतवर्ष को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था. People from different parts of the world came to India to control its wealth. अन्य जो है राष्ट्रों से भी जो लोग जो है भारत में आए to control its wealth. Gradually, they settles down and mingles with the peoples lying here. So you will read more on this in your history. You will read more about it when you will go through the chapters of the first chapter of civics, that is the diversity. So people who came from outside adopted certain elements of our cultures while retaining some elements of our cultures. Elements of their own cultures. This intermingling of cultures led to emergence of new language, dance forms, schools of music and painting, new cuisines and religions. Different cultures thus influence one on one another and brought about diversity. तो भारत में जो है अन्य राष्ट्रों से बहुत सारी जो है भाषा के लोग और सभ्यता संस्कृति के लोग आए. इस तरह से जो है संस्कृति का, भाषा का, उनके जो है रीति रिवाजों का जो आदान प्रदान हुआ और भारत विषमताओं से भर गया. Now let's study about the kinds of diversity in India. India is a land of enormous
फिजिकल डाइवर्सिटी, भारतवर्ष जो है भौगोलिक रूप से भी विषमताओं से जो है भरा हुआ है। देयर आर द लॉफ्टी हिमालयाज, फर्टाइल प्लेन्स, द डेक्कन प्लेट्यू, vast coastal areas, the arid Thar desert and many other landforms। तो भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, in the north the Himalaya mountain range lies and fertile plains, और जो है उपजाऊ जो है भूमि है, the Deccan Plateau and vast coastal area, और दूर दूर तक फैला हुआ जो है तटीय प्रदेश, the arid Thar desert and many other landforms। The existence of India as a nation depends on the interrelations of different regions and their dependence on one another। Dear students, rice and wheat is the staple food of India। भारत का जो मुख्य खाद्य है वो क्या है? राइस एंड व्हीट, चावल और आटा, गेहूं। इन द कंट्री इज ग्रोन इन द फर्टाइल प्लेन्स, जो कि जो उत्तर के जो है उपजाऊ भूमि में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। द माउंटेन्स आर अ सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स, और जो पर्वत हैं माउंटेन्स, दे आर द सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स, बहुत सारे नदियों के जो मुख्य जो स्रोत हैं वहां से नदियों का उद्गम होता है। Coastal areas provide fish, the Deccan Plateau grows cotton and is also a storehouse of essential minerals। Persons living in Delhi will get coconut grown in the coastal areas, while persons living in the coastal area will eat rice grown in the northern plains only, because of the different regions of country are connected to each other। The diversity in physical features adds a lot of variety to our cultures as well। तो जो भौगोलिक जो विषमताएं हैं और जो फिजिकल फीचर्स है भारत की, it adds a lot of variety to our cultures as well। While women living in the cool climate of Kashmir wear woolen firans, कश्मीर में जो महिलाएं हैं woolen firans जो है उनका जो है क्लोथ्स है। A woman living in the hot and humid Bengal prefers wearing a cotton साड़ी, और बंगाल में जो है कॉटन साड़ी यानी कि सूत के और माड़ी दिए हुए जो है साड़ी जो पहनती हैं। ओके, सो Bhangra and Gida are the popular dance from the vibrant and energetic peoples of Punjab। पंजाब के लोगों का जो डांस है वो क्या है? भांगड़ा है, यानी कि वो लोग भांगड़ा जो डांस करते हैं। The Assami like matching their steps to the subtle and artistic dance from the Bihu, और जो आसाम में जो है बिहू डांस is the very famous and people are fond of it over there। Now let's study about the religious diversity। Dear students, our country India is full of religious diversity, but India is considered as a secular country। भारत क्या है? सेकुलर कंट्री है। It doesn't mean that India has not any religion। This means that people of India have a right to follow any religion of their choice। इसका मतलब भारत के जो लोग हैं वे अपनी पसंद से जो धर्म है उसका अपने अपने धर्म का जो अनुसरण करते हैं। And celebrate their religious festivals। They celebrate their religious festivals, और अपने धार्मिक त्योहारों को वो अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। So religious communities such as Hindus, Muslims, Sikh, Christian, Jain, Parsis, Jews and Buddhists consider India their home। तो भारत में भिन्न भिन्न धर्म वाले जो लोग यानी कि क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, ज्यू, बुद्धिस्ट वे रहते हैं और भारत को ही और अपने आप को भारतीय समझते हैं। भारत उनका जो है क्या है? घर है, और हम सभी जो है एक ही परिवार के। हमारे भारतवर्ष में मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया, यानी कि पूरा विश्व ही क्या है? हमारा एक परिवार। The government of a country treats people of all religions alike without any kind of discrimination। और हमारी जो सरकार है वो भी किसी भी प्रकार का यानी जाति, धर्म, भाषा, मजहब का भेदभाव जो है नहीं करती है। तो इस तरह का जो है यानी कि जात, लिंग, रंग, रूप आदि का भेदभाव
नहीं है, हम सभी जो है भारतीय हैं। लेट्स स्टडी अबाउट द लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। भाषागत और जो है क्षेत्रीय जो विषमता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स एंड यूज डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। भारत के लोग जो है बहुत सी भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पर जो है तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और महाराष्ट्री, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजभाषा, मतलब कई तरह की जो है भाषाएं बोली जाती हैं। सो पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स एंड यूज डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, और इनकी अपनी अपनी लिपि है। द 8 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज। भारत में जो है 22 भाषाएं। हिंदी जो है हमारी प्रमुख जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी इज द प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज, while English is the secondary official language, और इंग्लिश क्या है? सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश इंडिया में। तो भारत हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी जो है सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। द गवर्नमेंट इनकरेज एवरी स्टेट्स टू डेवलप इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर। जो गवर्नमेंट है इट इनकरेज एवरी स्टेट टू डेवलप इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर। सारे स्टेट्स को जो है इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है कि वे अपनी भाषा को जो है क्या करें और उन्नतशील बनाएं, उसका प्रचार प्रसार करें। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत विषमताओं से भरा हुआ राष्ट्र है, फिर भी जो है क्या है, यहाँ की अनेकता में एकता है। In spite of all the differences, people living in India are Indian first. भाषागत, जातिगत, धर्म आदि का जो है भेदभाव विषमता होने के बावजूद भी सभी जो भारत में रहने वाले जो लोग निवासी हैं, भारतवासी, वे क्या हैं? भारतीय हैं। This unity has been, ये जो राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की जो भावना है, it has been a part of our history, ये हमारे इतिहास का अभिन्न अंग रहा है। People from all religions and languages had come together to participate in our struggle for freedom. People from all regions, हर एक जो क्षेत्र से और जो रिलीजन, जो धर्म के जो लोग हैं, भाषा के लोग आते हैं हमारे देश में, and participate in our struggle for freedom. और सभी लोग यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देश की स्वतंत्रता में यानी देश को गुलामी से आजाद कराने में सभी ने जो है अपना जो है समान रूप से जो है योगदान दिया। तो हमारे देश जो भारतवर्ष है इसकी अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो है क्या एकजुट हो गए, तब जाकर राष्ट्र हमारा जो देश गुलामी से आजाद हुआ। सम ऑफ आवर फेमस लीडर्स सच एज महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय and Bal Gangadhar Tilak came from diverse background. सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जो है डाइवर्स बैकग्राउंड से थे। द फ्रीडम फाइटर्स वेर इंस्पायर्ड बाय अ सिंगल विजन। जो फ्रीडम फाइटर थे यानी कि जो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, दे वर इंस्पायर्ड बाय द सिंगल विजन। उनका एक ही लक्ष्य था, दैट ऑफ अ न्यू एंड यूनाइटेड इंडिया। उनका यह जो लक्ष्य था कि भारत जो है क्या हो, यूनाइटेड इंडिया हो, स्वतंत्र हो, भारत का संविधान हो, भारत की अनेकता में भी जो है एकता हो, और भारत हर एक दृष्टि से यानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक हर एक दृष्टिकोण से हर एक क्षेत्र में जो है भारत का विकास हो, उन्नति हो। When India became independent, the leader ensured that the unity in diversity stay preserved. जब भारत हमारा जो देश गुलामी से आजाद हुआ तो हमारे जो देश के जो स्वतंत्रता सेनानी और जो नेतृत्व करने वाले जो नेता लोग थे, उन्होंने इंश्योर किया that unity in diversity stay preserved, कि भारत की अनेकता में एकता जो है बनी रहेगी और इसको बचाए रखना है। So today this unity in diversity is intertwined with the very identity of India. The Indian Army, the Indian Civil Service, the National Cricket Football and other sports teams
the popular movie industry, the diversity is apparent everywhere. तो भारत में यदि हम देखें तो भारतीय जो सेना है, इंडियन सिविल सर्विस, नेशनल क्रिकेट, भारत में जो क्रिकेट इंडियन टीम है, फुटबॉल मैच, अदर स्पोर्ट्स टीम्स जो है सब पॉपुलर है, मूवी इंडस्ट्री, द डाइवर्सिटी इज अपरेंट एवर, हर जगह विषमता हमें जो देखने की मिलता है. The religious as well as the regional identities do not play any important role. लेकिन ये जो धार्मिक विषमताएं हैं और जो अलग अलग जो राज्य के लोग हैं, ये विषमताएं ये महत्वपूर्ण नहीं है. सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं. सभी हम सब भारत माँ की संतान हैं. A Muslims movie stars has a huge fan following among the Hindu populations. While Hindu cricket is considered the ultimate hero by children belonging to all religion and regions. So dear students, we should proud to be an Indian and be a responsible Indian. As a future citizen of our country, हम सभी लोग क्या हैं, देश के नागरिक हैं. We are the citizen of our country. So it is important that we not only understand and appreciate. तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि केवल हम इसको समझें ना, बल्कि इसको स्वीकार भी करें. But also help in upholding the unique spirit of unity, की एकता को बनाए रखें. इसके लिए जो है हम लोग जो है सांप्रदायिकता को और सहिष्णुता को या धार्मिक दंगों को, धार्मिक भेदभाव को, ये सब को जो है बढ़ावा जो है न दें. We should be proud of our diversity. इन विषमताओं पर हमें गर्व करना चाहिए. And resist those selfish interests that want to create a divide among, और स्वार्थपरायणता की मनता जो हमारे यानी कि धर्म के नाम पर, जाति और भाषा के नाम पर देश को जो टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, ऐसे जो देश विरोधी जो तत्व हैं, उनका हम सभी एकजुट होकर जो है मुकाबला करें, सामना करें और ये भारतीय राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेम की भक्ति भावनाओं को जो है क्या करें, बढ़ावा दें. नो रिलीजन और रीजन इज बेटर देन द अदर, ऑल ऑफ देम आर यूनिक. सभी धर्म बहुत अच्छे हैं. द मेन गोल ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू attain the God and to be free from the salvation of Maya. सभी धर्मों का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है और ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न भिन्न अलग अलग जो है मार्ग हैं. तो सभी धर्म में बहुत सारी जो है अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, बहुत सारी जो है विचारों की जो क्षमताएं भी हैं, विचार मिलते जुलते हैं. एंड ह्यूमैनिटी इज द बेस ऑफ ऑल रिलीजन, और सभी धर्म का प्रमुख आधार जो क्या है, मानवता, ह्यूमैनिटी. नो रिलीजन एंड रीजन इज बेटर देन द अदर, ऑल ऑफ देम आर यूनिक एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर आवर रिच हेरिटेज. व्हेन ईच ऑफ अस विल रियलाइज दैट आवर आइडेंटिटी एज ए इंडियंस कम्स बिफोर ऑल आवर अदर एंटिटी, वी कैन बिकम अ ट्रू सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. Okay dear students, now Rajasthan is situated in the western India bordering. Okay dear students, that's okay. Thank you for listening me. Have a great day to all of you. Wish you all the best.